और हम लोग लेक्चर भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए। वी आर एट विच क्वेश्चन नाउ? गौरव, following is the balance sheet of Gaurav as on March 8। ठीक है, ये मार्च 8 की बैलेंस शीट है। गुडविल, बिल्डिंग, मशीन, पेटेंट, स्टॉक, डेटा, इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट सिंकिंग फंड, कैश एंड बैंक, equity capital, reserves, sinking fund, workman compensation accident fund, estimated liability 9,000, employee profit sharing fund, staff provident fund, creditor, debentures. Gagan absorbed Gaurav. So who is purchasing company? And selling company. Taking over the liability. देखो सब liability ले लिया है. And the payment of cost of absorption not exceeding 8,000. So Gagan Limited will also pay 8,000 as a cost of absorption. The repayment of B debentures at a premium of 5% in cash. The discharge of A debenture at a premium of 10% by issue of 6% debentures in Gagan at par. That means new company will have to take over the liabilities. After that they will pay. ऊपर लिखा भी तो है, liabilities are taken. Payment of 15 per share in cash. Allotment of 7% preference shares of 100 each fully paid, and 5 equity shares of 10 each fully paid for every 4 shares. So ये दो किसको देगा? शेयरहोल्डर को, पीसी. The actual absorption expense came to 10,000. We'll come back to this. The stock of Gaurav includes goods valued at 56,000 purchased from Gagan, which company invoiced at cost plus 16/2/3. So ये इसका क्या करें मुझे बताना. The directors of Gagan decided to create provision of 5% on debtors against doubtful debts. Creditors of Gaurav includes 80 to Gagan. PC बताओ. Close. ओपन द बुक्स ऑफ परचेसिंग. पूरी प्रॉब्लम बाद में बात करेंगे. सबसे पहले आप ये देख रहे हैं ना. हाँ, सबसे पहले आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो. क्वेश्चन कॉपी करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिया? पूरा प्रॉब्लम बाद में बात करता हूं, मुझे खाली पहले पीसी बता देना. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन कॉपी कर लो. कर लिया? गुड. अब मुझे खाली पहला तो पीसी कैलकुलेट करके दे दो. पीसी मीन्स व्हाट? पेमेंट मेड बाय purchasing company to the shareholders of selling company. चलिए, सबसे पहला मुझे पीसी कर दो, बाकी की पूरी बात ही बाद में करते हैं. चलो ना. गेट मी द पीसी. पीसी के लिए आपको एडजस्टमेंट 4 and 5 लगेगी. गेट मी पीसी. मुझे पीसी का कैलकुलेट करके दो. स्टार्ट करें पीसी. ओके, सो कैलकुलेट पीसी. कौन सा क्वेश्चन है ये? 4. डेट क्या है आज? 70.
कौन सा टॉपिक चल रहा है? अमालगमेशन, एब्सॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। ठीक है, सबसे पहला मुझे पीसी कैलकुलेट कर दो, बाकी की बात बाद में ही करेंगे। पीसी मीन्स पेमेंट मेड बाय परचेसिंग कंपनी टू द ओल्ड कंपनी शेयर होल्डर। देखो इधर दिया है, पेमेंट ऑफ 15 rupees per share in cash. So how many shares are there? 20,000 equity shares of 100 each था। So calculate कर दो, कैश कितना है? What's the cash? 20,000 shares, एक शेयर पर 15 rupees। So calculate कर दो, 3 लाख। दूसरा और क्या है? Where is the next one? Allotment of 7% preference shares of 100 each and 5 equity shares of 10 each for every 4 shares. For every 4 shares. So 7% preference shares. For every 4 old, 1 new preference shares. So 20,000 old share. How many preference shares? Answer 5,000 preference shares. So क्या आंसर आया? 5,000 preference shares of 100 each, right? Of 100 each हो गया ₹5 लाख। ये सब किसको मिल रहा है? ये सब इक्विटी शेयरहोल्डर्स को मिल रहा है। पहले कैश था, सेकंड 7% प्रीफरेंस शेयर्स है। 4 old, 1 new, 20,000 old share. How many new? 5,000 shares of 100 each। लिख डालो इतना। आगे चलिए, एडजस्टमेंट नंबर 4-5 पढ़िए, रीड करो एडजस्टमेंट 4-5। Allotment of 7% preference shares of 100 each fully paid and 5 equity shares of 10 each fully paid for every 4 shares. अभी इक्विटी शेयर्स 4 old, 5 new, तो 20,000 ओल्ड शेयर के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई 25,000 न्यू शेयर। So 25,000 equity shares of 10 each। ठीक है, 25,000 equity shares of 10 each। So that comes 2,50,000। So total कितना हो गया? 10,50,000। That's a total PC। PC means payment made by purchasing company to the old company shareholders। PC means one single figure price। जब ऐसा प्राइस डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं ना, ये मेथड का नाम क्या है? नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड। अच्छा,
सो परचेसिंग कंपनी ओल्ड शेयर होल्डर को बोलेंगी प्लीज टेक कैश 3 लाख, प्लीज टेक 7% प्रीफरेंस शेयर्स, प्लीज टेक इक्विटी शेयर। सपोज आप लोग ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर है और आपको ये 10,50,000 का पीसी मिल गया, फिर आप क्या करेंगे? चैट में लिख के दो। आप ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर है, आपको परचेसिंग कंपनी ने 10,50,000 के कैश और शेयर्स दे दिए, फिर आप क्या करेंगे? जल्दी से चैट में लिख के दो। आई रिपीट माई क्वेश्चन। आप ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर है, परचेसिंग कंपनी ने आपको 10,50,000 कैश और शेयर्स दे दिया, फिर आप क्या करेंगे? चैट में लिखो या माइक में बोलो, बट फ्यू ऑफ यू राइट इन चैट। एक दो जन को माइक में बोलना है तो भी चलेगा। बोलिए। एक ने भी आंसर नहीं दिया है। आई रिपीट, आप ओल्ड कंपनी के अकेले शेयर होल्डर है, समझो खुद सोल प्रोप्राइटरशिप है, सोल शेयर होल्डर है, आपको परचेसिंग कंपनी ने 10,50,000 एज पर एग्रीमेंट दे दिया, फिर आप क्या करेंगे? आंसर हाँ बोलिए। एक का भी नहीं आया है। माइक में से कोई बोलना चाहता है? कोई नहीं? ओके, तो आंसर बहुत सिंपल है, आप ये कंपनी छोड़ के चले जाएंगे, वेरी सिंपल, घर पे जाके बैठ जाएंगे। अच्छा, तो फिर कंपनी की सब असेट लायबिलिटी का क्या होगा? आंसर नेट पेमेंट मेथड में, क्योंकि परचेसिंग कंपनी ने ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर को पेमेंट कर दिया है, वो कंपनी छोड़ के चले जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली, आई यूज द वर्ड ऑटोमेटिकली, all the asset and all the liability are taken over except when it is specifically given no, something is not taken. I repeat again, in net payment method of PC, when PC is directly calculated and paid to the shareholder, the old shareholder will leave the company. Automatically all the assets and all the liabilities are always taken over except when questions specifically say something is not taken over. सो ये पहला पॉइंट है कि ऑल द असेट एंड ऑल द लायबिलिटीज आर ऑटोमेटिकली टेकन ओवर। वैसे हमारे प्रॉब्लम में लिखा तो था कि लायबिलिटीज आर टेकन, लेकिन असेट के बारे में किधर भी नहीं लिखा था कि विच असेट इज टेकन। देखो कहाँ लिखा है, कहाँ भी नहीं लिखा है। हाँ, कुछ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करने की कुछ बात किया है, बट क्लियरली कहाँ लिखा है व्हाट इज टेकन व्हाट इज नॉट टेकन इन द असेट्स। तो क्या रूल है इन नेट पेमेंट मेथड? आपको चाहे तो नॉलेज के लिए लिखना है तो एक लिख डालो ना, एक रिमार्क में समझने के लिए, रिमार्क कहाँ भी नीचे नोटबुक में। इन नेट पेमेंट मेथड once PC paid to old shareholders, they leave the company hence automatically, मतलब by default, all assets and liabilities are taken over by purchasing company except when specifically given that something is not taken. नंबर 2, ठीक है, ये एक पॉइंट है। इन नेट पेमेंट मेथड, इन नेट पेमेंट मेथड ऑफ पीसी वर्ड लिखना है। Once PC paid to all shareholders, they leave the company. Hence, automatically all assets and liabilities are taken over by purchasing company except when specifically given that something is not taken. Clear? Okay. अब क्वेश्चन चले। अब ध्यान से देखना, लायबिलिटी ले लिया है तो वैसे ही ले लिया है। गगन absorbed गौरव, ठीक है,
द टर्म्स आर पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एब्सॉर्प्शन नॉट एक्सीडिंग। देखो, एक होता है ओल्ड कंपनी को क्लोज करने का एक्सपेंस, उसे लिक्विडेशन एक्सपेंस बोलते हैं। लिक्विडेशन एक्सपेंस के बारे में कुछ ज्यादा नहीं लिखा है तो वी एज्यूम वो ओल्ड कंपनी पे करते हैं। और कॉस्ट ऑफ एब्सॉर्प्शन मतलब बिजनेस परचेस करने का है, वो कुछ नहीं लिखा है तो हम मानते हैं वो परचेसिंग कंपनी पे करेगा ना, बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसेस टू बाय अनदर कंपनी। तो ये कौन पे करेगा? न्यू कंपनी। तो ये किसकी किताब में आएगा? न्यू कंपनी की किताब में। क्या आप में से कोई आंसर देना चाहता है? न्यू कंपनी क्या एंट्री करेगा? ये लिक्विडेशन एक्सपेंडिचर टू क्लोज द ओल्ड कंपनी नहीं है, ये परचेसिंग कंपनी बिजनेस परचेस करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस कर रही है। क्या आप में से कोई आंसर देना चाहता है कि क्या एंट्री करेगी न्यू कंपनी? न्यू कंपनी क्यों करेगी, ओल्ड क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये परचेसिंग बिजनेस परचेस करने का एक्सपेंस है। कोई तुम्हारे में से आंसर देना चाहता है न्यू कंपनी क्या एंट्री करेगी? वे टू डेबिट। क्या आप में से कोई आंसर देना चाहता है वेर इट विल बी डेबिटेड? कौन जल्दी करो, अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं बता देता हूं आंसर। न्यू कंपनी गुडविल को डेबिट करेगी। ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर नहीं है। यदि वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू कैश है। ये तो एक्सपेंडिचर टू टेक ओवर द बिजनेस, इट्स अ टाइप ऑफ ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। लॉस है तो गुडविल टू कैश होता है। बाद में बी डिबेंचर एंड ए डिबेंचर को न्यू कंपनी पे कर देंगे, वो तो बाद में होगा। फोर्थ फिफ्थ पीसी का है। द एक्चुअल अब्सॉर्प्शन केम टू 10। नया कंपनी तो ओनली 8000 परचेसिंग कंपनी करने वाली है, सो 2000 कौन करेगा? तो फिर ये ओल्ड कंपनी को करना होगा। एज पर द एग्रीमेंट न्यू कंपनी बोला है 8000 वी विल पे, एक्स्ट्रा लगा तो आप पे कर देना। ओके, सो ये एक्स्ट्रा 2000 ओल्ड कंपनी को देना होगा। लेकिन ओल्ड कंपनी कहां से देंगे? तो याद रखना, जब भी ओल्ड कंपनी को एक्सपेंसेस करना है ना नेट पेमेंट मेथड में, तो उतना कैश 2000 बाजू पर रखना होगा एंड रिमेनिंग 28 हम न्यू कंपनी को परचेसिंग कंपनी को हैंडओवर करेंगे। सुनना, व्हेनेवर एनी एक्सपेंसेस आर टू बी इनकर्ड by the old company, then obviously it will be paid from cash and remaining cash will be taken over by purchasing company. ये हमने दिमाग में पहले लिखा है, वापस से लिख दो लीडर भी। If any expenses, अपने प्रॉब्लम में 2000 are to be incurred by old selling company, then only remaining cash, नेट पेमेंट मेथड में ये बात भी ध्यान रखना कि टेक्निकली सब असेट हम नया कंपनी को परचेसिंग कंपनी को देने वाले हैं, तो फिर हम एक्सपेंस कहां से करेंगे? तो ऑब्वियसली कैश से ही करना होगा। सो इफ एनी एक्सपेंसेस हियर 2000 आर टू बी इनकर्ड बाय ओल्ड सेलिंग कंपनी, देन ओनली रिमेनिंग कैश will be given to purchasing company. ये भी मैंने पहले लिखवाया है। If any expenses here 2000 are to be incurred by old selling company, then only remaining cash will be given to the purchasing company. कौन फटाफट लिखो। आगे चले। If any expenses here 2000 are to be incurred by old selling company, then only remaining cash will be given to the purchasing company. Go next. So 8000 तो परचेसिंग कंपनी गुडविल टू कैश करेगी। ओके, आगे। स्टॉक ऑफ गौरव इंक्लूड्स गुड्स वैल्यूड 56 फ्रॉम गगन। ये इंटर कंपनी ट्रांसफर परचेस ऑफ स्टॉक है, लाइक अवर होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मुझे अनरियलाइज प्रॉफिट डाउन करना होगा। ये सिर्फ परचेसिंग कंपनी में एंट्री होती है, बट वंस द बिजनेस इज टेकन ओवर उसके बाद में आएगा। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी परचेसिंग कंपनी में है, बाद में आएगा। फिर ये क्रेडिटर एंड डेटर भी परचेसिंग कंपनी का है, वो बाद में आएगा। तो ये सब बात बाद में करेंगे।
This adjustment 789 is affecting purchasing company book. Intercompany debt, intercompany transfer of stock does not affect calculation of PC. Calculate as usual. Close the books of old company as usual. Open the books of purchasing company as usual. After that, intercompany data creditor cancel करेंगे. Then stock provision for unrealized stock भी create करेंगे, वो सब बाद में. So ये भी बाद में आएगा. क्वेश्चन खत्म हो गया. अब मैं स्टार्ट कहां से करूं? अब मुझे ओल्ड कंपनी की बुक्स बंद करना है. ठीक है, अब सुनना. सब असेट्स चला गया है. सो ऑल द असेट्स आर टेकन ओवर एज पर द रूल. लेकिन यहाँ 28 चला जाएगा. वी हैव डिस्कस दैट. लायबिलिटी, अच्छा, इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयरहोल्डर्स, रिजर्व्स, इक्विटी शेयरहोल्डर्स. क्या सिंकिंग फंड लायबिलिटी है? नो, वो तो रिजर्व्स होता है ना. सो ट्रांसफर टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स. वर्कमैन एक्सीडेंट फंड, इनफैक्ट ये क्या है? लायबिलिटी है कि रिजर्व्स है? ये भी रिजर्व्स है, ये भी रिजर्व्स है. हमने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट बाजू पर रखा है. बाय चांस एक्सीडेंट हुआ तो काम आएगा, बट एक्सीडेंट नहीं होता है, एक्सीडेंट नहीं होता है तो वो रिजर्व है. तो हमारे 50 में से 9000 लायबिलिटी है. तो हम क्या करेंगे? चाहे तो आप 50,000 9,000 लायबिलिटी पे कर देंगे इफ यू वांट, एंड द रिमेनिंग जो भी बचेगा 41,000 हम इक्विटी से होल्डर्स में ट्रांसफर कर देंगे. ये बात समझ में आया? टेक्निकली ये रिजर्व्स है. वर्कमैन, व्हाट इज वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड? It is a reserves created out of profit to meet the liability that may arise when accident take place. If no accident take place, it is in the nature of reserve. If accident take place, तो हम उसे अकाउंटिंग उसमें करते हैं. प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये तो लायबिलिटी है. वर्कर को कुछ प्रॉफिट देना है, ये भी लायबिलिटी है. सो एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग फंड लायबिलिटी होता है. स्टाफ प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी होता है. क्रेडिटर तो लायबिलिटी होता है. चाहे तो हम ये बात भी लिख डालते हैं नॉलेज के लिए. चलो, रिमार्क. वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड एंड प्रोविडेंट फंड आर लायबिलिटी. Workmen compensation fund is a reserve created out of profit to meet the liability which may arise Workmen compensation fund is a reserve created out of profit to meet the liability which may arise if any accident takes place and liability arises. In our question, estimated liability is rupees 9,000 as per terms. All liability are taken over by purchasing company. सी हमारे को तो बोला है ना, ऑल लायबिलिटीज आर टेकन ओवर, तो मानते ये भी ले लिया है. तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड कहाँ जाएगा? वो तो रिजर्व्स होता है. हमारे प्रॉब्लम में, इस प्रॉब्लम में ऑल लायबिलिटीज आर टेकन बाय परचेसिंग कंपनी क्लियरली बोला है, तो मैं मानता हूं ये लायबिलिटी भी ले लेगी. चलिए,
वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड इज अ रिजर्व, वो रिजर्व होता है, खाली ये मेरे को आपको बताना है, विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। सपोज ये अमालगमेशन अब्सॉर्प्शन नहीं है और लायबिलिटी मुझे पे करना है, तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का एक्सपेंसेस हम ये रिजर्व में डेबिट करते हैं पीएनएल में लिखने के बदले में। इधर एक काम करते हैं, एंड इधर चेंज करता हूं वर्ड, एंड कॉम्पेंसेशन पेड। मैं वर्डिंग चेंज किया है, क्या लिखा है? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड इज अ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट द लायबिलिटी व्हिच may arise if any accident take place and compensation paid। चले, चलो अभी हमको ओल्ड कंपनी की बुक्स क्लोज करना है, वहां से तो स्टार्ट करिए। बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी क्लोज करो, वो तो सिंपल होता है। रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। स्टेप 1, फिनिश बैलेंस शीट असेट साइड। Step 1, finish balance sheet asset side. Transfer all the assets to realization account. The transfer is compulsory. The transfer should be at book value. So goodwill, land building, plant and machine, whether assets are taken or not, you have to transfer. In fact, taken not taken का choice सिर्फ cash में है। Patent, stock, debtors, investment, cash bank, $28,000, 30 नहीं। कैश के लिए रूल है इफ टेकन ट्रांसफर। कैश के लिए रूल है इफ टेकन ओवर ट्रांसफर। सपोज मैं नॉलेज के लिए, जस्ट नॉलेज के लिए कैश बैंक अकाउंट बनाता हूं, नॉलेज के लिए 5-6 लाइन का। तो देखो सबका एक अकाउंट होता है ना, इवन गुडविल बिल्डिंग मशीन का अकाउंट होता है, उसमें रियल सपोज सबका एक अकाउंट होता है। जैसे बिल्डिंग 1560 है, फिर हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हैं ना, तो अकाउंट बंद हो जाता है। इवन सबका अकाउंट होता है, मशीन का भी अकाउंट होता है, जैसे 14 लाख है, वो भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाता है, लाइक दैट। ये सब रियलाइजेशन में ट्रांसफर होता है। सो नॉलेज के लिए सपोज मैं कैश बैंक अकाउंट बनाता हूँ, जस्ट हाउ इट लुक्स लाइक देखने के लिए। तो पता है इसमें स्टार्टिंग में तो 30,000 है, उसमें रियलाइजेशन में कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 28। 2000 क्यों रखा है?
वो एक्सपेंस करना है ना, एक्स्ट्रा एब्सॉर्प्शन एक्सपेंस. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. चलिए अभी फिनिश बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. फर्स्ट शेयर कैपिटल, ओपन अकाउंट, शेयर होल्डर्स अकाउंट. Finish balance sheet liability side. Equity share capital transfer to equity shareholders account. Then reserves. पार्टनरशिप है तो डिवाइड या इक्विटी शेयरहोल्डर्स. सिंकिंग फंड भी रिजर्व्स होता है, इक्विटी शेयरहोल्डर्स. देन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड. क्या करूं, वैसे तो टोटल अमाउंट 50 है, इधर लिख डालू. वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड का क्या कर रहा हूं, उसमें 9000 लायबिलिटी है, बैलेंस रिजर्व्स है. एक्सीडेंट नहीं होता है तो वो रिजर्व्स है. लायबिलिटी तो नया कंपनी, परचेसिंग कंपनी हैज टेकन ओवर. सो व्हाट आई विल डू, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड जो रिजर्व्स है वो रिजर्व्स है, एंड जो लायबिलिटी है वो रियलाइजेशन में जाएगा बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन लायबिलिटी. वो नया कंपनी, परचेसिंग कंपनी ले लेगी. सो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड में 9000 लायबिलिटी है, 41000 रिजर्व है. रिजर्व रिजर्व्स में जाएगा एंड लायबिलिटी रियलाइजेशन में जाएगा. वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड में 9000 लायबिलिटी है, and as per the agreement all liabilities are taken over by purchasing company. आगे एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग फंड लायबिलिटी है, एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग फंड लायबिलिटी होता है. आगे देन स्टाफ प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी होता है. फिर क्रेडिटर्स, देन ए डिबेंचर, फिर बी डिबेंचर. फिनिश बैलेंस शीट असेट साइड, लायबिलिटी साइड. नेक्स्ट स्टेप, record PC, purchasing company to realization. याद करिए स्टेप्स क्या है. स्टेप 1 फिनिश बैलेंस शीट असेट साइड, स्टेप 2 लायबिलिटी साइड. चलो आगे. ओके, बताइए स्टेप क्या था. फिनिश बैलेंस शीट असेट साइड, लायबिलिटी साइड, रिकॉर्ड पीसी, परचेसिंग कंपनी टू रियलाइजेशन. परचेसिंग कंपनी का नाम है गगन लिमिटेड. टू रियलाइजेशन आई थिंक सो इट वाज 10,50,000. रिसीव पीसी, it was cash debit 3 lakh,
equity shares debit, preference shares debit to purchasing company. यही है ना पीसी, देखिए ना 3 लाख 5 लाख एंड 250. चलो करिए दो एंट्री. Record PC means ask for money, purchasing company to realization. Get the money, cash debit, equity shares debit, preference shares to new company. Record PC, receive PC. Record PC, receive PC. Record PC, receive PC. चले. So Gagan Limited. To realization. By Gagan Limited, PC. PC. Purchasing company to realization. Get the money. ये एंट्री कर दिया PC. Get the money, cash debit 3 lakh, cash debit preference shares debit to purchasing company, equity shares debit to purchasing company, cash debit, equity shares debit, preference shares debit, and in purchasing company by cash by 7% preference shares by equity shares. This is record PC and receive PC. Record PC and receive PC. Record PC and receive PC. Next step, dispose assets not taken by new company. They've paid money, they will take over all the assets. तो आंसर वो तो सब असेट लेके गए ऑलरेडी, तो कुछ नहीं करने का. If some assets are not taken, we'll sell in the market cash to realization. Next step, dispose liabilities not taken. All liabilities are taken. हमको कुछ नहीं करना है. So dispose assets not taken. हमारे पास कुछ नहीं है, सब ले लिया है. वो एग्रीमेंट है, हमने स्टार्टिंग में लिखा liabilities not taken, all liabilities are taken. Then liquidation expense, realization to cash. ये प्रॉब्लम में एक्स्ट्रा 2000 हमें भरना था. So realization to cash. वो एक्स्ट्रा एक्सपेंस 2000 था ना. रियलाइजेशन टू कैश याद है ना, हमने 30,000 में से 28 ही दिया था उसको. वो एक्स्ट्रा अब्सॉर्प्शन एक्सपेंस हमको भरना था एज पर द एग्रीमेंट. Purchasing company said we'll 8,000 only we'll spend. नेक्स्ट क्लोज रियलाइजेशन. वैसे नेक्स्ट स्टेप होता है पे प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स. हमारी कंपनी में प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स ही नहीं, ओनली इक्विटी शेयरहोल्डर्स. सो क्लोज रियलाइजेशन. पता करिए प्रॉफिट लॉस क्या है. टोटल चेक करो, डेबिट टोटल क्या है, क्रेडिट टोटल क्या है. सो क्लोज रियलाइजेशन.
क्या क्रेडिट टोटल 2849 है? चेक करिए, चेक करो। $2849 डेबिट चेक करिए, डेबिट। क्या डेबिट टोटल 44 है? 4440 चेक करो जरा। डेबिट टोटल 4440 है, तो बड़ा सा लॉस हो रहा है। क्या ये 1591 लॉस हो गया? अब चेक कर लो जरा। एनीबडी हैज चेक्ड? बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स, चेक कर लो जरा। $15,91 लॉस हो गया। ट्रांसफर इट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। कहाँ जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स में जाएगा। $15,91,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स में जाएगा। 15,91,000 ट्रांसफर इट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। किधर है? हाँ इधर है ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स। एंड द लास्ट स्टेप, अवेलेबल कैश शेयर्स जो भी है इक्विटी शेयर होल्डर्स को देके पेमेंट कर दो। क्या बचा है हमारे पास? ऑब्वियसली कैश 3 लाख है, प्रीफरेंस शेयर्स है और इक्विटी शेयर्स है, वो उनको देने के लिए तो मिला है। अवेलेबल कैश शेयर्स दे दो, उन्हीं को देने के लिए तो है, दे दो। एक तो कैश है 3 लाख बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स, उन्हीं के लिए मिला है, उन्हीं का है ये। फिर और क्या है? 7% प्रीफरेंस शेयर्स, वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। फिर ये भी उन्हीं का है। देखो ये टैली हो गया, ओल्ड कंपनी की बुक्स बंद हो गई।
चले, बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी. What is the definition of PC? Purchase consideration price. It's a single figure. Who gives to whom? Purchasing company gives to the shareholders of old selling company. How do we calculate? One net payment method जहाँ डायरेक्टली देते हैं कैश शेयर्स एंड ऑल. कभी कभी कुछ मिसिंग होता है तो वी गो फॉर सेकंड मेथड. याद करिए नेट एसेट मेथड. अभी तक हमने नेट एसेट मेथड नहीं, ये नेट पेमेंट मेथड ही है. ठीक है. हाँ, फिर कुछ हमने रिमार्क लिखा है कि नेट पेमेंट मेथड ऑफ पीसी, वंस पीसी पेड टू ओल्ड शेयरहोल्डर्स दे लीव द कंपनी, automatically all assets and liabilities are taken over by purchasing company except when specifically given that something was not taken. हाँ, दूसरा, जब all asset and liability are taken तो cash will also be taken. तो फिर ओल्ड कंपनी एक्सपेंस कहाँ से करेंगे? है तो if any expense year 2000 are to be incurred by old selling company, then only remaining cash can be given. वैसे नॉलेज के लिए वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड लायबिलिटी होता है, प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी होता है, लेकिन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड रिजर्व होता है. वो क्यों बनाते हैं? अरे भाई, प्रॉफिट साइड पर रख के रिजर्व क्रिएट करते हैं. बाय चांस कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ पैसा देना पड़ा, तो दैट लॉस वी डेबिट टू द रिजर्व. एक्सीडेंट नहीं है तो बचा हुआ रिजर्व होता है. हमारे क्वेश्चन में टोटल 50,000 था, तो 9,000 कुछ लायबिलिटी है, तो रिमेनिंग 41 रिजर्व है. क्लियर? चलिए, अब बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी देख लेते हैं. परचेसिंग कंपनी में क्या क्या एडजस्टमेंट दिया गया है. पहला तो बी डिबेंचर को हम 5% प्रीमियम में कैश में पे करना है, एंड ओल्ड डिबेंचर्स को भी 10% प्रीमियम देना है, बट उसके बदले में हम न्यू डिबेंचर देंगे. दैट मीन्स बोथ दिस लायबिलिटीज आर ऑटोमेटिकली टेकन. फोर्थ फिफ्थ पीसी का है. एक्चुअल एक्सपेंस 10 है, बट न्यू कंपनी परचेसिंग कंपनी विल पे ओनली 8. देन कुछ स्टॉक है, वो मुझे अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, जो हम पहले भी करते थे. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. प्रोविजन फॉर डाउटफुल देखते हैं कैसे करेंगे. इंटर कंपनी डेब्ट भी देखेंगे. ठीक है. तो चलिए, पहला परचेसिंग कंपनी की बुक में देखो कैसे एंट्री करता हूं. परचेसिंग कंपनी, इधर पता है 8वां स्टेप क्या है? पे प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स. 9th स्टेप एक्सपेंसेस, एंड 10th स्टेप अवेलेबल cash etc. give to shareholders, equity shareholders. The steps are very close to conversion of firm into company, very close. चलिए, बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी स्टार्ट करो. 3 बेसिक जर्नल एंट्री करिए. बुक्स ऑफ purchasing company. Who is that purchasing company? Gagan Limited. First, business purchase to liquidator. Of Gaurav Limited, PC. Being business of Gaurav Limited purchased. ठीक है. अब बिजनेस परचेस नाम का बॉक्स खोलो, 1 बाय 1 एसेट ले लो. जहां जहां नया वैल्यू है वहां नया वैल्यू, नया वैल्यू नहीं है तो पुराना वैल्यू. 1 लाइन बैलेंसिंग फिगर गुडविल के लिए छोड़ो. देखो क्या क्या एसेट लायबिलिटी है न्यू वैल्यू पर. लैंड बिल्डिंग, गुडविल बैलेंसिंग आएगा. लैंड बिल्डिंग, मशीनरी, पेटेंट, स्टॉक, डेटा, इन्वेस्टमेंट, बैंक. चलिए, सब एसेट खोलो.
वन बाय वन। क्या क्या असेट्स है, गुडविल छोड़ के वो बैलेंसिंग फिगर आएगा। सो लैंड बिल्डिंग, क्या नया वैल्यू दिया है? नहीं, नया वैल्यू किधर भी नहीं दिया है, खाली एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बोला है, बाकी नोवेयर न्यू वैल्यू इज गिवन। सो सेम ओल्ड वैल्यू। प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट राइट, न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू नहीं है तो ओल्ड वैल्यू लिखते हैं। स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, कैश बैंक। $28,000। टू, लायबिलिटीज। एक होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बट उसकी अमाउंट में हम देखेंगे जरा कुछ एडजस्टमेंट है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है, विल चेक इट आउट एंड वर्क आउट। क्वेश्चन मार्क आप लिखो फिर अमाउंट लिखेंगे और चेक करिए लायबिलिटी क्या क्या है। मैं भी लिख रहा हूं, आप भी लिखेंगे। क्योंकि बाय चांस इंटर कंपनी डेप्ट है तो हमको देखना है जो डेटर कैंसिल हो जाता है वो कैंसिल हो जाता है, ओनली आउटसाइड डेटर्स पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आएगा। सो एक पेंडिंग रखता हूं, चेक करते हैं लायबिलिटी क्या क्या है। जहां जहां भी लायबिलिटी का नया वैल्यू है वो लिखो, डिबेंचर में लायबिलिटी का नया वैल्यू है, विल सी इट क्या क्या है। क्या हम लायबिलिटी स्टार्ट करें? क्या आप लिखना चाहते हैं लायबिलिटी खुद? न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू को फेयर वैल्यू बोलते हैं। हाँ, वो न्यू वैल्यू अलग से नहीं देते तो हम बुक वैल्यू ही लिखते हैं, वी एज्यूम दैट एज अ न्यू वैल्यू। देखो लायबिलिटी क्या क्या है। इक्विटी कैपिटल लायबिलिटी में ही होता है, रिजर्व लायबिलिटी में ही है, सिंकिंग फंड लायबिलिटी में ही है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन में ओनली 9,000 लायबिलिटी है, प्रॉफिट शेयरिंग लायबिलिटी है, पीएफ लायबिलिटी है, क्रेडिटर लायबिलिटी है, ए एन बी डिबेंचर लायबिलिटी है। लेकिन ए एन बी डिबेंचर की न्यू वैल्यू कितनी है? न्यू वैल्यू में बोला है कि बी डिबेंचर हमको 5% प्रीमियम पर पे करना है, बी डिबेंचर, तो उसकी लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? 10 लाख प्लस 5%, मतलब 10,50,000। एंड ए डिबेंचर भी 10% प्रीमियम पर पे करना है। कैसे, वो बाद में की बात है, बट पे तो 10% प्रीमियम करना है, तो 4 लाख प्लस 10% प्रीमियम, सो 40,000 पेएबल है, 4,40,000। सो न्यू वैल्यू। चलिए क्या क्या लायबिलिटी है लिखो। सो इक्विटी कैपिटल रिजर्व सिंकिंग फंड लायबिलिटी नहीं है, फिर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन लायबिलिटी है 9,000, और लायबिलिटी आर टेकन। फिर एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग फंड लायबिलिटी था, ये तो प्योर लायबिलिटी है, ये अकाउंटिंग लायबिलिटी का है, वर्कर को प्रॉफिट देना पड़ेगा 1 लाख का। स्टाफ पीएफ लायबिलिटी है, फिर क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, टू ए डिबेंचर होल्डर्स, वो लायबिलिटी है कितना? आंसर, मुझे इसको 10% प्रीमियम पर पे करना है ना, 4 लाख प्लस 10% प्रीमियम था, मैंने
मैंने डिबेंचर में डिबेंचर होल्डर लिखा है, फिर उसको पे करेगा डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, फिर बी डिबेंचर होल्डर वर्ड लिख रहा हूं क्योंकि उनको भी पे करेंगे बाय गिविंग समथिंग एल्स। इसको भी 5% प्रीमियम पर पे करने वाले हैं। कैसे देंगे, क्या देंगे, वो बाद में की बात है। ठीक है, सब लायबिलिटी लिख दिया। टू, बिजनेस परचेस, क्योंकि सब बिजनेस परचेस नाम का बॉक्स में से निकल रहा है। ठीक है, अब डिफरेंस डेबिट में आएगा तो गुडविल होगा, क्रेडिट में आएगा तो कैपिटल रिजर्व होगा। ठीक है, आगे चले। अब बताइए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है। तो मुझे देखना है इंटर कंपनी डेटर क्रेडिटर का क्या चक्कर है। फिर मैं ये लिखता हूं, इधर भी एक लाइन छोड़ दो, बीइंग assets liabilities taken over recorded, being assets liabilities taken over recorded। क्लियर। अब मैं आउटसाइड डेटस कितना है ना, आउटसाइड डेटस जरा मुझे चेक करना है। इफ इट इज 4 लाख तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सपोज कुछ कैंसिल होता है तो हम देखेंगे, वो एंट्री समझना पड़ेगा, फिर मैं डाउटफुल डेट्स का एंट्री कर पाएगा। हम लोग करेंगे। थर्ड एंट्री कर देना है क्या, पीसी पेमेंट, लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, सेकंड एंट्री पेंडिंग है, पूरी नहीं किया है, लिक्विडेटर ऑफ गौरव लिमिटेड। क्या क्या दे रहे हैं हम, कैश दे रहे हैं, 7% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल दे रहे हैं, you know, and equity share capital। being PC paid। अब एक इंटर कंपनी डेट कैंसिल कर देते हैं, फिर हम डाउटफुल डेट्स का अमाउंट कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि मुझे चेक करना है कि मेरा डेटर्स 4 लाख ही रहता है तो प्रॉब्लम नहीं है, चेंज होता है तो विल चेंज। इंटर कंपनी डेट की एडजस्टमेंट पढ़ो, एंट्री तो पता है आपको, क्रेडिटर्स टू डेटर्स हमने बहुत बार सीखा है, बट लेट्स सी किसका डेटर किसका क्रेडिटर, ये चेक करते हैं ना, एकदम ध्यान से देखना। क्रेडिटर ऑफ गौरव बोला है, तो गौरव तो ये ओल्ड सेलिंग कंपनी है, इंक्लूड्स 82 गगन, दैट मीन्स डेटर में कोई चेंज नहीं है, क्रेडिटर है। लगता है बिफोर अमलगमेशन गगन हैड सोल्ड सम गुड्स टू गौरव, गगन का डेटर एंड गौरव का क्रेडिटर, तो प्रॉब्लम नहीं है। ये जो गौरव है इधर, ये गौरव के सब असेट लायबिलिटी है, इसके जो क्रेडिटर है 80 पेएबल टू गगन है, डेटर तो सब आउटसाइडर है तो प्रॉब्लम नहीं है। क्रेडिटर्स ऑफ गौरव, क्रेडिटर ऑफ गौरव देखो क्लियरली लिखा है, क्रेडिटर ऑफ गौरव, हम गौरव थे इधर, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर, इसके अंदर 80 गगन है तो कैंसिल करो, क्रेडिटर्स ऑफ गौरव टू डेटर्स, डेटर्स किसका होता है, ऑफ गगन, बीइंग इंटरकंपनी डेट कैंसल्ड।
देखो वीडियो देखने वाले, आपको प्रीवियस वीडियो में ये इंटरकंपनी डेब्ट की एडजस्टमेंट सिखाया है, और जो रेगुलर स्टूडेंट है ये लेक्चर जिसके लिए चल रहा है उनको तो ये आता ही है क्रेडिटर टू डेटर, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे चैप्टर में एंट्री सीखा है। लेकिन ये जो डेटर है उसको कोई इंपैक्ट नहीं है, तो 5% आपको पूरे पर ही लिखना है। इधर कोई इंपैक्ट ही नहीं है, इसमें से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए डेटर किसके थे? गगन के थे, गगन। एंड क्रेडिटर्स गौरव। ये क्या है? गौरव। ठीक है, ये नॉलेज के लिए लिखा है ब्रैकेट, आप खाली क्रेडिटर टू डेटर लिखते चलता है। ओके, अभी ये सेकंड एडजस्टमेंट क्लोज करो। डिफरेंस डेबिट में आया तो गुडविल, क्रेडिट में आया तो कैपिटल रिजर्व। यू नो हमने 1050 का पीसी पे किया है, इतनी सारी नेट असेट पे की है, इतनी सारी नेट असेट परचेस किया है। सो ज्यादा पेमेंट हो गया तो गुडविल आएगा, कम पेमेंट किया तो कैपिटल रिजर्व। चलो फटाफट देखो किस साइड डिफरेंस आता है, फटाफट बताओ। वो भी मैं टैली करूं क्या? डेबिट का डेबिट टोटल कितना है, क्रेडिट टोटल कितना है? डेबिट क्या 4038 है? डेबिट टोटल चेक करो जरा एक बार। या क्रेडिट कितना है? क्या क्रेडिट 2959 है क्या? चेक करो ना, चेक करो तो डिफरेंस कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। चेक कर दो जरा। $1,79,000, क्या ये फिगर राइट है? चेक कर लो। प्लीज चेक इट आउट एंड रिप्लाई मी। चेक करके बोलो मेरे को। बोलिए। एक स्टूडेंट तो आंसर दो। इफ इट इज करेक्ट राइट सी, if it is wrong write W. Capital reserve 1079. If it is correct write C. Oh very good, 22 people have replied. Asta was fastest. Good. चलिए अब आगे जाते हैं।
अब एक काम करते हैं, जो भी लेफ्ट आउट एडजस्टमेंट है देख लेते हैं। पहला तो डिबेंचर होल्डर को पे कर देते हैं। ये फोर्थ एंट्री, आई होप यू डन। पे ऑफ द डिबेंचर होल्डर, कैसे पे करना है आपको देखना है। ए डिबेंचर होल्डर को कैसे पे करना है? ए डिबेंचर होल्डर को आई थिंक सो कैश में पे करना है, नहीं बी को पे कैश में पे करना है। ए को क्या देना है पढ़िए। बी डिबेंचर को कैश में पे कर दो एंड ए को कितना पे करना है वी हैव अंडरस्टूड, बट कैसे? बाय न्यू 6% डिबेंचर्स एट पार, तो कर दो पे ए और बी दोनों को। ए को हमको नया डिबेंचर देना है एट पार, ए डिबेंचर होल्डर्स डेबिट, being a debenture holders discharged, पेड वर्ड भी चलेगा, बाय न्यू डिबेंचर। एंड बी डिबेंचर होल्डर्स को कैश देना है। B debenture holders paid in cash. चले, अब और क्या ट्रांजेक्शन है? ओनली इन परचेसिंग कंपनी है ना, ओनली इन परचेसिंग कंपनी और क्या ट्रांजेक्शन है? द न्यू कंपनी हैड टू पे कॉस्ट ऑफ अब्सॉर्प्शन 8,000, क्या एंट्री करूं? आंसर गुडविल टू कैश। कोई अदर ऑप्शन है प्रेजेंटेशन के लिए? है, वैसे तो आंसर है एनी एक्सपेंस एट द टाइम ऑफ टेक ओवर इज गुडविल टू कैश। नाउ आप चाहे तो गुडविल लिखो, बट फिर ये गुडविल और ये कैपिटल रिजर्व लास्ट में ऐड हो जाएगा। कैपिटल रिजर्व वाज प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ टेक ओवर, गुडविल वाज एक्सपेंस एंड लॉस एट द टाइम ऑफ टेक ओवर। बैलेंस शीट में गुडविल असेट साइड कैपिटल रिजर्व दोनों नहीं बताते हैं, तो जब भी पहले गुडविल था तो यहां भी गुडविल लिख दो सो दैट योर गुडविल इंक्रीजेस। पहले कैपिटल रिजर्व था तो चाहे तो आप इधर क्या लिख सकते हैं, गुडविल के बदले में कैपिटल रिजर्व लिख सकते हैं, मतलब योर कैपिटल रिजर्व विल रिड्यूस। यहाँ प्रॉफिट था, यहाँ लॉस था। कोई लोग अभी गुडविल टू कैश लिखते हैं फिर गुडविल को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व टू गुडविल, बात एक ही है, बट अल्टीमेट आंसर इज गुडविल टू कैश। पहले गुडविल है तो अभी भी गुडविल लिखो सो दैट योर गुडविल इंक्रीजेस। पहले कैपिटल रिजर्व है तो अभी कैपिटल रिजर्व लिखो सो दैट योर कैपिटल रिजर्व डिक्रीजेस। बीइंग कैपिटल रिजर्व या नेट गुडविल लिखते हैं ना बैलेंस शीट में। बीइंग कॉस्ट ऑफ अब्सॉर्प्शन पेड, कितने लोग को ये समझ में आया? 8,000 की एंट्री वाई लिखो, वाई द वर्ड कैपिटल रिजर्व। जो लोग को ये कैपिटल रिजर्व वर्ड समझ में आया वाई वर्ड लिखो। गुडविल और कैपिटल रिजर्व एक ही वर्ड है, जो लोग को समझ में आया वाई वर्ड लिखो, एक भी को नहीं समझ में आया है ओके। देखो पहले गुडविल है तो मैं अभी गुडविल लिखेगा बिकॉज तो टोटल गुडविल इंक्रीजेस। पहले कैपिटल रिजर्व अभी कैपिटल रिजर्व लिखेगा तो कैपिटल रिजर्व रिड्यूसेस। जैसे फाइनल बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व कितना आता है पता है?
1079 माइनस 8 सेम। ओवर, चलते आगे। आगे चले। नेक्स्ट इंटरकंपनी डेप्ट और इंटरकंपनी स्टॉक सिखा देता हूं। सुनिए, जनरल एग्जांपल, ये ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड है। बिफोर अमालगमेशन दे ऑलरेडी हैव अ ट्रेड रिलेशनशिप विथ ईच अदर। जैसे कि मैंने कुछ बी को गुड्स बेचा होगा, ए का जितना भी डेटस है बी इज 10,000 बिफोर अमालगमेशन, बी के जितने भी क्रेडिटर्स है ए इज 10,000 बिफोर अमालगमेशन। ए हैड टू गेट मनी फ्रॉम बी, बाद में ए बी अमालगमेट हो गया। सच इंटरकंपनी डेब्ट डजंट अफेक्ट कैलकुलेशन ऑफ पीसी, कैलकुलेट एज यूजुअल। क्लोज द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी एज यूजुअल, ओपन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी एज यूजुअल। बाद में जब नया बैलेंस शीट बनाता हूं तब क्या होता है पता है? ए और बी, ए ने अपना डेटस दिया, बी ने अपना डेटस दिया, लेकिन ये डेटस के अंदर 10,000 तो बी है। ए ने अपना क्रेडिटर्स दिया, बी ने अपना क्रेडिटर्स दिया, लेकिन क्रेडिटर के अंदर 10,000 तो ए है, और ए और बी अलग कंपनी था तब तक ठीक है। अब तो ए और बी सेम हो गया, तो क्या करना है? 10,000 डेटस से कैंसिल करना है, ओनली आउटसाइड डेटस बचेंगे। 10,000 क्रेडिटर्स से कैंसिल करना है, ओनली आउटसाइड क्रेडिटर्स बचेंगे। डेटस कैंसिल करने के लिए 2 डेटस, क्रेडिटर्स कैंसिल करने के लिए, so journal entry for cancellation of intercompany debt is creditor to debtor। हमने ऑलरेडी पास किया था ना हमारे प्रॉब्लम में 80,000। ओवर। नेक्स्ट पॉइंट is intercompany transfer of stock before amalgamation, A limited and B limited। ए लिमिटेड ने कुछ मार्केट से 50,000 का गुड्स परचेस किया था, ओके, एंड वो वाला गुड्स बी को 75 में बेचा है, 25,000 प्रॉफिट लगाया है। ए परचेस सम गुड्स फ्रॉम मार्केट एट 50, सोल्ड इट टू बी, ओके, ये बिफोर अमालगमेशन है। बाद में क्या हो गया? ये वाला गुड्स बी के पास अनसोल्ड है। अब ए बी लिमिटेड आया, नया कंपनी अमालगमेटेड, ए ने अपना स्टॉक दिया, बी ने अपना स्टॉक दिया, तो बी ने जो स्टॉक दिया ये तो 75 पर आया है। यही गुड्स, यही ए कंपनी ने बाजार से 50 में लिखा है, और ए और बी अभी एक ही आदमी है। वही गुड्स जो बाजार से हमने 50 में लिखा है, अब नया बैलेंस शीट में तो 75 में आ रहा है। योर स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय हाउ मच? 25। सो न्यू बैलेंस शीट में, अमालगमेटेड बैलेंस शीट में, ये स्टॉक को ओरिजिनल कॉस्ट पर वापस ले आओ, reduce down the stock by 25। The question is where will you debit? ये बताओ डेबिट कहां करेंगे? I repeat my question। मैं मेरा क्वेश्चन एक दो जन से मैं चैट में आंसर एक्सपेक्ट करता हूं। हाँ, सो ए लिमिटेड ने बिफोर अमालगमेशन कुछ परचेस किया था बाजार से 50,000, 25 का प्रॉफिट लगा के बी को बेचा बिफोर अमालगमेशन। ए वो सेपरेट, बी वो सेपरेट, कोई समस्या ना थी। बी के पास ये स्टॉक अनसोल्ड है बैलेंस शीट में। अब ए भी मिक्स होके एक ही कंपनी बन गया, अमालगमेटेड बैलेंस शीट। तो न्यू कंपनी में वो स्टॉक 75 पर आ रहा है। ऑडिटर बोलता है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 25। हमने बोला ठीक है। ऑडिटर बोलता है स्टॉक को रिड्यूस करो, कर दिया। टू स्टॉक, वेयर डू आई डेबिट? न्यू कंपनी, परचेसिंग कंपनी, फॉर रिड्यूसिंग द स्टॉक, लॉस हो रहा है, डेबिट कहां करेगा? एक भी आंसर नहीं आया है। सो सच इंटरकंपनी ट्रांसफर ऑफ स्टॉक will not affect calculation of PC, calculate as usual। Close the books of old company as usual, open the books of purchasing company as usual, but बाद में न्यू अमालगमेटेड कंपनी में ये स्टॉक को रिड्यूस करना होगा, so that the stock appears at again back at cost। टू स्टॉक, वेयर टू डेबिट? एक आंसर नहीं आया, एक इंटेलिजेंट आंसर नहीं आया। अब मैं ऐसे भी नहीं बोल सकता हूं और कुछ, क्योंकि मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकता है, मैं और उल्टा पुल्टा भी आपके लिए नहीं बोल सकता। बोलिए, एक भी आंसर नहीं आया है। अरे यार, एक तो आंसर लिखो करण,
और कौन है? कुश, विधि, साहिल सेंडिया है क्या लेक्चर में? साहिल, खुशी, आउशी, रश्मि, आसाम, पंजाब, जम्मू, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। कुछ भी आंसर नहीं आ रहा इन लोग का। अरे भाई, ऑल लॉसेस एट द टाइम ऑफ टेक ओवर कहां जाता है? गुडविल, ये एक्सपेंस हो गया ना एट द टाइम ऑफ टेक ओवर। आंसर है गुडविल टू स्टॉक। हाँ, सो टू स्टॉक, गुडविल, सपोज पहले गुडविल है तो गुडविल, सो दैट योर गुडविल इंक्रीजेस। पहले कैपिटल रिजर्व है तो कैपिटल रिजर्व लिखो, सो दैट योर कैपिटल रिजर्व डिक्रीजेस। बात एक ही है। सो गुड कैपिटल रिजर्व इज ऑपोजिट गुडविल, या गुडविल इज ऑपोजिट कैपिटल रिजर्व। बट अमाउंट कितना है अपने प्रॉब्लम में देखते हैं क्या लिखा था। स्टॉक ऑफ गौरव includes goods valued at 56 है, purchased from Gagan, and Gagan invoiced goods at cost plus 16 2/3। सो कैलकुलेट कर दो 56 के अंदर कितना प्रॉफिट है। 56 के अंदर कैलकुलेट कर दे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल। जब कॉस्ट 100 था, प्रॉफिट 16.66666 और सेल हो गया। तो जब सेल 116 है, कॉस्ट 100 है, या तो डायरेक्ट प्रॉफिट ही निकालते हैं ना, प्रॉफिट 16 है। जब सेल प्राइस 56 था तो प्रॉफिट कितना मिक्सअप हो गया है, कैलकुलेट कर दो। अब जितना डेसिमल ज्यादा लेते हैं ना, उतना परफेक्ट फिगर आ जाता है। टेक 5-6 डेसिमल, टेक 5-6 डेसिमल। आंसर हो गया 8000, 7999.99। सो 8000, 8000। So this entry is for 8000. Being unrealized profit included in stock eliminated. गगन ने गौरव को 16 2/3 प्रॉफिट लगा के बेचा था। 16 2/3, 2/3 मीन्स 0.66666। कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 16.66666, सेल 116.666। कितने लोग को ये समझ में आया? तो एस वर्ड लिखो, समझ में आया है तो। ये स्टॉक वाली एडजस्टमेंट, स्टॉक वाली एडजस्टमेंट समझ में आया तो एस वर्ड लिखो। एक स्टूडेंट ने नहीं लिखा है, वेरी बैड। जितने लोग को समझ में आया एस वर्ड लिखो। खत्म हो गया, बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी ओवर, अभी कुछ नहीं बचा है। एक स्टूडेंट ने नहीं लिखा है वर्ड एस। अच्छा, नहीं समझ में आया तो एन वर्ड लिखो। हाँ, अभी आया 22। अगेन आस्था फास्टेस्ट है। सो 22 स्टूडेंट लोग लेक्चर में बैठे हैं, अच्छा है, ये हो गया सम। नथिंग इज लेफ्ट इन द सम। चले, ये हो गया, सम ही हो गया। दिस सम इज ओवर इन ऑल रिस्पेक्ट। जो लोग को पूरा सम समझ में आया ओके वर्ड लिखो, सम समझ में नहीं आया तो नॉट ओके लिखो। समझ में आया है पूरा सम तो ओके लिखो, नहीं समझ में आया तो नॉट ओके लिखो।
मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।